Good morning, students. So, in previous class, we learned the difference between immigration and emigration, and also we came to know that how the caste was divided and how new caste came into existence. So, in today's class, let's proceed further. Besides, there were untouchables which included castes such as Dhobi, Harijans, Nat, Kevat, etc. A number of tribes like the Gonds, Bhils, Santals, etc. existed at that time. They inhabited the four forested hilly regions of the Vindhyas, Bihar, Bengal, Madhya Pradesh and Deccan. They lived by cultivation, hunting, fishing, etc. सो स्टूडेंट, जिन कास्ट के बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था, उसके अलावा भी कई सारी कास्ट थी जिनको अनटचेबल्स यानी अछूत का दर्जा दिया गया था, और इनमें धोबी, हरिजन, नट, केवट एक्सेट्रा थे। इसके अलावा कई सारी आदिवासी बीज हैं जिनमें गॉन्ड्स, भील, संथल्स एक्सेट्रा ये सब भी उस टाइम में एग्जिस्ट करते थे। वो फॉरेस्ट रीजन्स में रहते थे, विंध्यास के, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और डेक्कन के। वो अपना जीवन यापन हंटिंग, फिशिंग और कल्टीवेशन के थ्रू करते थे। The Rajput ladies commanded a respected position in the Rajput society. They were honored and protected by their men. They could choose their husbands in Swayamvar. They were given higher education, including that of warfare. There was no further system among Rajput women. Polygamy was prevalent in the Rajput society, but the position of women in other castes was not satisfactory as they were not provided higher education. Polygamy further weakened their status in the family as well as in society. Self-immolation or sati pratha was imposed on the widows. Widow remarriage was a taboo. तो जो राजपूत लेडीज थीं उनको राजपूत सोसाइटी में एक सम्मानीय स्थिति प्राप्त थी। उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था और उनको उनके मेंस के द्वारा उनकी सुरक्षा की जाती थी। राजपूत लेडीज़ों को अपना हस्बैंड चुनने की आज़ादी थी स्वयंवर में। उनको हायर एजुकेशन भी दी जाती थी। इसके अलावा उन्हें लड़ाई की शिक्षा भी दी जाती थी। राजपूत वीमेंस के अमंग में किसी भी प्रकार का पर्दा सिस्टम या घूंघट प्रथा वगैरह नहीं थी। उस टाइम में पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह बहुत ज़्यादा प्रचलन में था राजपूत सोसाइटी में। राजपूत सोसाइटी में वीमेंस की पोजीशन तो अच्छी थी, लेकिन जो दूसरी कास्ट थी उनमें वीमेंस की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी। उनको हायर एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा दूसरी कास्ट में जो पॉलीगैमी यानी बहुविवाह होता था, तो इसकी वजह से जो औरतें होती थी उनकी सोसाइटी में भी और फैमिली में भी स्टेटस और गिर जाता था। सती प्रथा भी उस समय जो है विधवाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, और विधवा पुनर्विवाह तो बहुत दूर की बात होती थी उस टाइम। In South India during the early medieval period, the Brahmins were held in high esteem by the rulers. They were granted tax-free land called the Brahmade or Agrahar. The merchants too held a position of prestige by virtue of their wealth. The majority of people were the common people. अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अर्ली मिडिवल पीरियड में जो ब्राह्मण्स होते थे उनको शासकों के द्वारा काफ़ी ऊंची पदवी दी जाती थी। उनको टैक्स फ्री लैंड दिए जाते थे जिनको ब्रह्मदेय या अग्रहार के नाम से जानते थे। व्यापारी लोगों को भी उनकी दौलत की वजह से काफ़ी अच्छी स्थिति थी। हालांकि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, मतलब ज़्यादातर संख्याएं जो है कॉमन पीपल यानी आम लोगों की थी। दी अपर कास्ट डोमिनेटेड द लोअर कास्ट and put several restrictions on them. They were debarred from entering the temple and were not allowed to draw water from the village wells or tanks. उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस यानी बंधन लगा के रखते थे। उनको मंदिरों में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही साथ उन्हें गांव का जो कुआं या तालाब वगैरह होते थे उनसे पानी लेने की इजाज़त भी नहीं थी। During the Sultanate period 1206 to 1526, the Indian society was divided into Hindus and Muslims. In the beginning, Hindus considered Muslims to be impure and untouchables and did not intermix with them as they were cruelly treated by Muslim conquerors. The sultans encouraged the conversion of Hindus to Islam by offering them many concessions. All the Hindus had to pay jizya. इसके बाद सल्तनत पीरियड जो कि 1206 से 1526 के बीच चला, भारतीय समाज हिंदूज और मुस्लिम्स में डिवाइड हो गया। शुरुआत में हिंदूज मुस्लिम्स को
अपवित्र और अछूत मानते थे और उनके साथ मिक्स नहीं होते थे, क्योंकि जो मुस्लिम शासक होते थे वो हिंदूज के साथ बुरा व्यवहार करते थे। सुल्तान्स ने फिर इसके बाद हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्जन के लिए प्रेरित किया और इस प्रेरणा के पीछे उन्होंने कई सारे कंसेशंस यानी छूट वगैरह प्रदान किए। इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न ये भी था कि जितने भी हिंदूज थे उन सबको जजिया देना पड़ता। जजिया एक प्रकार का टैक्स होता था, धर्म टैक्स जिसको हम कह सकते हैं। Hindu society was again divided into principal castes, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. In order of rank and status, there were numerous mixed castes as well. The position of the Brahmins and Kshatriyas had deteriorated. The Brahmins no more enjoyed royal patronage, while the Kshatriyas had lost political power, which left them highly demoralized. हिंदू समाज भी इसके बाद कई सारे कास्ट में डिवाइडेड था, जिनमें मुख्य कास्ट थी ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्य और शूद्राज। इसके अलावा भी कई सारी मिक्स्ड कास्ट भी थी। सल्तनत पीरियड आने के बाद जो ब्राह्मण्स और क्षत्रियाज थे उनकी स्थिति काफ़ी गिर गई थी। ब्राह्मण्स को अब जिस तरह पहले उनको काफ़ी ज़्यादा छूट मिलती थी, काफ़ी सम्मान मिलता था, अब या संरक्षण मिलता था, वो सब अब नहीं रह गया। जबकि जो क्षत्रियाज थे उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकतें खो दी थी, जिनकी वजह से उनका मोरल डाउन हो गया था। The position of the Hindu women deteriorated further as they had no independent status. Child marriage along with further system brought about degradation in their condition. Sati was common but not forced. The institution of Devdasis in the temple, particularly in the south, was in existence. हिंदू औरतों की स्थिति तो और ज़्यादा गिर गई थी, उनके पास कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। इसके अलावा बाल विवाह, पर्दा सिस्टम, इन सब की वजह से उनकी स्थिति और ज़्यादा गिरती चली जा रही थी। सती सिस्टम उस समय भी कॉमन था, लेकिन अब कोई फोर्स नहीं करता था सती होने के लिए। टेम्पल्स में देवदासी खासतौर से दक्षिण भारत तरफ अभी भी प्रचलन में था। Slavery was fairly common in those days. Muslims enjoyed enslaving Hindu women who were forced to entertain the Muslim court and nobility with dance and music. गुलामी भी उस समय बहुत कॉमन थी। मुस्लिम लोग हिंदू औरतों को अपना गुलाम बनाते थे और अपने दरबार में उनसे डांस और म्यूजिक वगैरह करवाते थे। Muslim population included the Turks, Afghans, Mongols called the New Muslims, in the Abyssinians, the Arabs, etc. Among different foreigners. The Turks monopolized political power in India. They believed in racialism and despised low-born non-Turks. With the passage of time, conversion to Islam increased, especially among low-caste Hindus. जो भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन थी उनमें टर्क्स, अफगान, मंगोल, जिनको न्यू मुस्लिम कहा जाने लगा था, एबिसियंस और अरब्स वगैरह इंक्लूडेड थे। और इन सभी फॉरेनर्स में जो टर्क्स थे उन्होंने राजनीतिक ताकत पे एक तरीके से एकाधिकार जमाया हुआ था। वो रेशियलिज्म में बिलीव करते थे, चाहे भले ही कोई नॉन टर्क हो। और समय के साथ साथ इस्लाम में परिवर्तन होने, हिंदुओं का इस्लाम में कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ख़ासतौर से जो लो कास्ट हिंदूज थे वो इस्लाम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। The Muslim too had religious differences. The rivalry between the Shias and Sunnis continued throughout the medieval period. The Afghans were the sworn enemies of the Mughals. मुस्लिम्स में भी धार्मिक डिफरेंसेस थे। शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो मिडिवल पीरियड में भी शुरू रही। और जो अफगान्स थे वो मुगल्स के जन्मजात दुश्मन थे। The Muslims mostly lived in the urban areas while the converts mostly lived in the rural areas. The Indian origin Muslims engaged in handicraft and petty trades in cities. Besides artisans, there were Muslim butchers, water carriers, washers, engravers, painters, weavers, barbers, carpenters, etc. जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में रहते थे, जबकि जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। जो भारतीय मूल के मुस्लिम थे वो हैंडीक्राफ्ट्स और दूसरे छोटे मोटे ट्रेड्स में बिजी रहते शहरों में, जबकि जो आर्टिसंस के अलावा मुस्लिम बुचर्स भी थे, वाटर कैरियर्स, वाशर, एनग्रेवर्स, पेंटर्स, वीवर्स, बार्बर्स और कारपेंटर्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते थे उस टाइम में। रॉयल हाउस होल्ड एंड रिच अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज यूज्ड टू एम्प्लॉय डोमेस्टिक सर्वेंट्स। वार विद द was the most important source of supply of slaves. Prisoners of war, mostly Hindus,
वर इंस्लेव्ड स्लेव्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका, वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। तो जो राजघराने होते थे और जो अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज होती थी वो घरेलू नौकरों को रखने की प्रथा थी उनके बीच में। गुलामों को लाने का सबसे बड़ा जो सोर्स होता था वो था जंग। जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें जो भी प्रिजनर्स होते थे मोस्टली हिंदूज, उन सबको गुलाम बना लिया जाता था। इसके अलावा अफ्रीका, वेस्ट और सेंट्रल एशिया से भी गुलामों को इंपोर्ट किया जाता था। The Muslim women in India occupied a subordinate position and were at the mercy of their husband, who could marry at least 4 times according to the Shariat. They observed strict parda and wore a burqa whenever they went out. जो मुस्लिम औरतें थी भारत में उनकी स्थिति कुछ खराब थी और उनको अपने हस्बैंड की दया पे निर्भर रहना पड़ता था और उनके हस्बैंड एटलीस्ट उनके शरीयत के मुताबिक, शरीयत मुस्लिम लॉ को कहते हैं, तो मुस्लिम लॉ के मुताबिक 4 बार शादी कर सकते थे। इसके अलावा उन्हें पर्दा सिस्टम फॉलो करना पड़ता था और जब भी वो बाहर जाते थे तो वो बुर्का पहन करके जाते थे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर द डे।